Friends, hearty welcome to you all to Marwari Hospitals this press conference. We are very happy to tell you that we have today a very eminent, towering personality in the medical field, particularly in the nephrology vertical, Dr. Jacob Chacko. He is authority on this subject and we are really fortunate to have him today. Dr. Saab was kind enough, he visited Marwari Hospital yesterday also and he had a very fruitful discussion with our doctors as to what is happening in the nephrology. The past, present and future, and we very nicely dealt with the subject. And it's not a fortune for Marwari Hospital, let me tell you. He is a certainly well-wisher of Marwari Hospital. But apart from that, he is well-wisher to the people of Northeast also. He being the head of nephrology department at Christian Medical College, Vellore. Lot many people have benefited from our region when Sir was there, and he still continued to advise them, the people from our region particularly. So lot many people are very grateful to Dr. Sir, and today we thought we should make a program for the general public of the Northeast so that they are aware as to what is the development in the nephrology field. So I would not take much of time. I will straightway request Dr. Saab to please highlight as to what are the developments, and also with the blessing of Dr. Chacko, we are also discussing the plans how to have the arrangement in our Marwari hospital so that we can also patients, a family with whom we have been associated for many years. And since yesterday, at the end of my talk, when I talked about the past, present and future of kidney transplant, I was asked about why is there such a big problem with kidney disease? And then when I mentioned the numbers, the people here were extremely surprised. Generally, what is not well known is that in a population, if you take 100 people and screen them, about 10 to 15 of them will have some degree of kidney function abnormality. Not that they are all in kidney failure or that they require treatment for kidney disease, but if you screen a population, so that is what is known as, a term which is used is prevalence. The number of people in a population who are affected by any particular disease is known as the prevalence of that disease. And in the population survey, and I'm talking about Indian numbers, I'm not talking about Western figures, the published numbers are between 10 to 15 people in 100 will have some abnormality in their kidney. Out of this population, about 150 to 200 per million population. Initially we were talking about percentage or out of 100, but when you talk about the number who go into total kidney failure, it is around 150 to 200 per million population. So since we have the distinction of being the largest country in the world, we are looking at nearly 150,000 to 2 lakh people every year developing kidney failure to the extent that requires treatment. क्या होता है कि अपने भारत में 100 आदमी होगा तो उसमें 10 या 15 को किडनी का या गुर्दे का बीमारी होता है. ऐसा नहीं कि ये 10-15 को ट्रीटमेंट करने का लेवल का बीमारी नहीं होता है, परंतु किडनी का जांच करे तो और टेस्ट खून या पेशाब टेस्ट करने से निकलता है कि इनका किडनी में बीमारी है. ऐसा होगा तो उनको आइंदा में फ्यूचर में
टेस्ट वगैरह कराते रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सालों के बाद आहिस्ते आहिस्ते किडनी का फंक्शन कम होते जाता है और किडनी का फेलियर हो जाता है। इन्फेक्शन कई बार होता है या जन्म से भी हो सकता है किडनी का बीमारी, तो कई कारणों से किडनी का डैमेज हो सकता है। पर किडनी का डैमेज हो गया तो उसके लिए फिर इलाज करने में खून की सफाई करना पड़ता है, कि क्या जिसको डायलिसिस करके बोलते हैं। डायलिसिस, खून का डायलिसिस कर सकते हैं, जिसको हीमोडायलिसिस करके बोलते हैं, जो खून की सफाई होती है। नहीं तो अपने खुद के पेट में फ्लूइड डाल के, पानी डाल के सफाई खुद घर में कर सकते हैं, इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कर। तो ये दो उपाय है। और तीसरा उपाय है जैसे कि गुर्दा बदलना या किडनी ट्रांसप्लांट करना। इसके लिए अपने खुद का गुर्दा या किडनी निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा एक कोई भी डोनर का किडनी लगा सकते हैं। और डोनर अपने परिवार के आदमी, फैमिली का डोनर होने से कई साल तक वो किडनी रहने का चांस अच्छा है। बाहर के डोनर से ट्रांसप्लांट करना आजकल गवर्नमेंट से मना है, समझे ना। ये 1994 में ट्रांसप्लांट एक्ट करके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट, लॉ बनाया है, जिससे बाहर के डोनर यानी कि फैमिली के आउटसाइड डोनर से ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। और यदि आप करोगे तो इट इज पनिशेबल बाय लॉ, आप लीगल एक्शन ले सकता है सरकार। परंतु ये ब्रेन डेड करके, यानी कि ज़्यादा करके एक्सीडेंट में ना, मोटरसाइकिल में जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, गिरते हैं इधर उधर और ब्रेन डेड, ब्रेन फंक्शन स्टॉप होता है, वैसे लोगों का या और कोई कारण से ब्रेन परमानेंट डैमेज होता है, जिसका हार्ट फंक्शन करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह सपोर्ट के लिए दवा देना पड़ता है, वो है कैडावर डोनर या डिसीज डोनर करके बोलते हैं। उनका ऑर्गन्स लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर आजकल जो भी हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट करना चाहता है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और हर महीने इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है कि भाई हमने इतना फैमिली मेंबर से 4 ट्रांसप्लांट किया है, ब्रेन डेड पर्सन से 2 किया है, सब एवरी मंथ रिपोर्ट करना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन करके एक दिल्ली में है और हर स्टेट में स्टेट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है यदि ट्रांसप्लांट करें। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरे एक आदमी का ऑर्गन लगाने से अपना बदन उसको रिजेक्ट करने का, यानी कि उसको फेंकने का चांस है, तो वो अवॉइड करने के लिए जिंदगी भर दवाएं लेना पड़ता है और टेस्ट कराना पड़ता है। परंतु जिसका किडनी टोटल फेल हुआ है, उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट हो सकता है। यदि ट्रांसप्लांट नहीं होने का चांस है तो फिर डायलिसिस या इधर हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कराना पड़ता है। सर सिम्टम्स क्या होता है वो किडनी फेलियर का सिम्टम्स क्या है, किसी को अगर है तो किडनी का जो जिस सिम्टम्स, तो कई सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होता है। पाँव में बैठे पाँव में सूजन होता है, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या पेशाब में प्रोटीन या खून है, तो ये इंडिकेशन है कि अपना किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है। और जिसको शुगर का बीमारी है या बीपी का है, ज़रूर कम से कम एक साल में एक बार, कम से कम या 6 महीने में एक बार इसका खून यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट और ब्लड टेस्ट बहुत इजी टेस्ट है। ये दोनों करने से पता चलेगा कि यदि अपना गुर्दा बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर अल्कोहल इज रिलेटेड टू लीवर, लेकिन किडनी भी डैमेज कर सकते हैं क्या जी? अल्कोहल नहीं, पर सिगरेट यस। तो किडनी से अल्कोहल से लिवर खराब हो जाता है, किडनी में कोई खास दिक्कत नहीं होता है, परंतु सिगरेट से जरूर, टोबैको से हो सकता है, क्योंकि टोबैको से किडनी
उसका ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमें होता है। हेल्दी हेल्थी किडनी के लिए आपको कोई किडनी का ये सिम्टम्स जो हमने बताया वो तो रेगुलर करना, नहीं तो अपना वेट मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ज़्यादा अधिक नमकीन नहीं खाना। ऐसा नहीं कि भाई इसके बाद जाके नहीं बोलना कि कोई नमक नहीं खाना, ऐसा नहीं समझे, परंतु हाईली सॉल्टेड फूड यानी कि अचार पापड़ वगैरह ज़्यादा नहीं लेना, एक्सेसिव जो भी हो एक्सेस इज नॉट गुड, मॉडरेशन इज ऑलवेज सबसे अच्छा है। एक खून का टेस्ट करने से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे ना, तो उसमें वो एक्चुअली इफ यू गूगल करें तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जैसे कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका एक टेबल है, तो अपना वजन, अपना उम्र और एक खून का रिसर्च डालने से बताएगा कितना परसेंट। तो नॉर्मल अप टू 90% डैमेज तक मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन, आखिरी का 10% में ही अपने को डायलिसिस वगैरह जरूरत पड़ता है। तो अप टू 90% मेडिकल मैनेजमेंट, दवाएं, डाइट वगैरह से कंट्रोल कर पाते हैं, पर इसको लास्ट 10% ओनली लेफ्ट ना, जब तो उस स्टेज में खाली डायलिसिस पाएगा। কৰিছে আৰু CIBৰ মেইন টকটো আছে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ অফ কিডনি ডিজিজ ইন ইণ্ডিয়া, মানে কিডনি ৰিলেটেড কি সমস্যা আৰু তাৰ কি সমাধান ফিউচাৰত হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া কি আছে। ইণ্ডিয়া আপোনালোকে জানে বহুত ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আৰু হাইলি পপুলেটেড, তো ইয়াতে কিডনিৰ সমস্যা খুবেই বেছি আৰু সেইখিনি বস্তু আমাৰ কমন মানুহে গম নাপায়। কিডনি অসুখ কেনেকৈ তেওঁলোকে ডক্টৰক এপ্ৰ'চ কৰিব, কি হ'লে এপ্ৰ'চ কৰিব আৰু কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কি সুবিধা আছে, কোনে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰিব, কাৰ পৰা ডোনাৰ ল'ব পাৰিব, সেইখিনি বিষয়ে আজি অৱগত কৰোৱাৰ কাৰণে ৰাইজক আমাৰ ডক্টৰ CK জেকব ছাৰে তেওঁ গোটেইখিনি ক'লে, আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিলে ডাটা ফিগাৰ বা ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ